फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्विकली रिव्यू व्हाट हैव वी रेड. ठीक है, बेयर एक्ट में एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है अबाउट आर्टिकल 29 एंड 30. सो व्हाट काइंड ऑफ राइट्स आर दीज एंड हु कैन अवेल दीज राइट्स. ओके, तो हमने देखा कि आर्टिकल 29 एंड 30 जो है ये आते हैं अंडर द हेड ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. ठीक है, cultural and educational rights is the name of the set of rights that is contained in articles 29 and 30 of the constitution. ठीक है, अब इनको जनरली माइनॉरिटी राइट्स के नाम से भी जाना जाता है कि 29 एंड 30 डील विद माइनॉरिटी राइट्स. ठीक है, थोड़ा सा मिसनोमर हो सकता है. रीजन बीइंग कि हमने देखा आर्टिकल 29 में इवन दो द हेड नोट ऑफ द आर्टिकल सेज दैट इट इज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, but if you look at article 29 it nowhere specifies that this protection is only available to minorities. Okay, because it clearly says that any section of citizens who are residing in the Indian territory who have a distinct language, script or culture have the right to protect it. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए अप्लाई होगा. दिस कैन बी यूज्ड बाय a majority section of citizens also, provided that they do have a distinct language, script or culture. ठीक है, 29(2) हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. 29(2) बात करता है कि एडमिशन के मैटर्स में, इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस maintained by the state or receiving aid from the state, no discrimination can be done on these grounds. ठीक है, तो पहले this was a problem in the case of Champakam Dorai Rajan, but then we saw that after the first amendment article 15 clause 4 was added and it was, the states were empowered to make special provisions and grant reservations to, certain sections of the society. Okay, so even though 29(2) is there, but it has to be read with article 15(4) and everything that is written over there. ठीक है, तो इसीलिए I hope you understand that there is no conflict per se because 15(4) शुरू ही ऐसे होता है, notwithstanding anything contained in 29(2). Okay, so it has anyway, it has it starts the non-obstante clause. Okay, so that is article 29. article 29 में ज्यादा कुछ नहीं है. Then we come to article 30. article 30 truly बात करता है minority rights की. ठीक है, वो भी किस बारे में? minority के दो rights की वो बात करता है. One, the right to establish educational institutions. ठीक है, तो minorities अगर चाहें तो वो educational institutions establish कर सकती हैं, और दूसरा राइट है that they can administer the educational institutions. ठीक है, तो they can administer and they can establish any educational institution that they want. Okay, लेकिन कौन सी minorities? ठीक है, सिर्फ दो टाइप की minorities ऐसा कर सकती हैं, religious minorities and linguistic minorities. ठीक है, यानी कि religion के basis पे कौन minority है वो educational institutions establish और administer कर सकते हैं, and linguistic minorities can do that. Okay, तो हम जितने भी केस लॉस पढ़ेंगे, TMA, पाए, PA, नामदार, सेंट स्टीफेंस, ठीक है, all of them basically talk about this aspect only कि minority institutions पे किस टाइप के रूल्स या रेगुलेशंस या लॉ, सेक्युलर लॉज जो होते हैं वो कितने एक्सटेंट तक अप्लाई हो सकते हैं. ठीक है, तो जो भी हम केस लॉज देखेंगे दे विल प्राइमरीली बी ऑन दिस इशू ओनली, और दे विल बी ऑन द इशू ऑफ कि हाउ विल वी डिटरमाइन माइनॉरिटीज, कि एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल 30 के अंदर कौन माइनॉरिटी हो सकता है और ये स्टेटस कैसे डिसाइड होगा, मतलब क्या पैरामीटर होगा फॉर डिटरमाइनिंग अ माइनॉरिटी अंडर आर्टिकल 30. ओके, 1A हमने देखा, 1A कुछ भी नहीं है. 1A बस इतना बोलता है कि अगर कोई कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड का अगर कोई लॉ है and if it wants to acquire the land belonging to a minority educational institution, then they will just have to make fair compensation for that, so that their right to administer and establish the institution is not taken away. ठीक है, 32 भी कुछ नहीं है. 30 clause 2 बात करता है कि स्टेट जब एड देता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को तो इट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन अ माइनॉरिटी एंड अ नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन. ठीक है, तो ऑल इन ऑल इस पूरे पार्ट में से 29(2) is important, but we have already dealt with it while dealing with the issue of reservation. So more or less 30 clause 1 is the part which is most relevant for you. Okay, all right. Okay, so 29 and 30 deal with cultural and educational rights. 29 clause 1 is available to sections of citizens. 30 clause 1 is only available to religious and linguistic minorities. ठीक है, आर्टिकल 29 क्या बात करता है? आर्टिकल 29 बात करता है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजंस हैज द फ्रीडम टू
protect their distinct language, script or culture. 29(1) के अंदर educational institutions may also be established with the freedom to choose medium of education. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि article 29 के अंदर education institutions cannot be established, they can be established there as well. Okay. अब right available under 29(1), as I told you, is not essentially only a minority right. Okay, any section of citizens who have a distinct language, script or culture can claim this right and they can be in the majority as well. ठीक है, तो 29(1) में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि this right is only available to the minorities. Okay, इसका एग्जाम्पल है डीएवी कॉलेज जलंधर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, जहां पे कोर्ट ने कहा था कि प्रमोशन ऑफ रिसर्च इन पंजाबी लैंग्वेज व्हिच वाज द मेजॉरिटी लैंग्वेज इन द स्टेट ऑफ पंजाब डज नॉट वायलेट आर्टिकल 29 क्लॉज 1. ओके, क्योंकि Punjabis also have the right to preserve their language. Okay, it is a distinct language, so they also have the right to preserve it under Article 29 Clause 1. Okay, 29(2) हम already जानते हैं, तो मैं इस पर discussion नहीं करूंगी क्योंकि 29(2) essentially talks about the policy of non-discrimination in matters of admission to educational institutions. ठीक है, अब इसमें अगर आपको 15(4) याद हो, which basically talked about special provisions, and 15(5) which basically talks about reservation in matters of admissions. ठीक है, तो वहां पे clearly लिखा हुआ है notwithstanding anything contained in 29(2) or 19(1)(g) etc etc. ठीक है, वहां पे ऐसा क्यों लिखा है? Because they wanted to override the provisions of 29(2) so far as giving reservation to SEBC is concerned. ठीक है, वहां पे ये भी लिखा है कि this will apply to government as well as private institutes except minority institutes under 30 clause 1. ठीक है, तो हमने इससे क्या सीखा कि reservation के जो provisions हैं वो government institutes and private institutions में भी apply हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन सिर्फ उसका एक ही exception है, that they cannot be applied to minority institutions under 30 clause 1. Okay, so that you have to remember that 30 clause 1 is exempted from the application of article 15 clause 4. Okay, अब ये हम already discuss कर चुके हैं कि 29(2) की वजह से चंपाकम डोरायराजन के केस में कोर्ट ने कहा था कि जो कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर था जिसके बेसिस पे वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दे रहे थे, that was struck down क्योंकि उस टाइम पे आर्टिकल 15(4) and 15(5) were not there. ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि 29(2) बोलता है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. सो इफ यू आर प्रोवाइडिंग कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस then they will violate 29 clause 2. Okay, so to undo the effect of this, the parliament enacted the first constitutional amendment in the year 1951 and it inserted article 15 clause 4 which gave power to the state to make special provisions for socially and educationally backward class of citizens. Okay, now we come to article 30, which is the most important part for us because this is the part which truly talks about the rights of minorities in India. ठीक है, अब माइनॉरिटीज कितने टाइप की हो सकती है आप इसको याद रख लीजिए कि आर्टिकल 30 के पर्पस के लिए माइनॉरिटी सिर्फ 2 टाइप की हो सकती है, या तो रिलीजियस माइनॉरिटी होगी या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होगी. ठीक है, और इनके 2 राइट्स की वो बात कर रहे हैं, राइट टू एस्टैब्लिश एंड राइट टू एडमिनिस्टर. ठीक है, टर्म क्या यूज हुआ है? राइट टू एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस. ठीक है, देयर चॉइस का मतलब है, और ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, देयर चॉइस का मतलब है देयर चॉइस इन द सेंस दैट ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो इट विल ओनली टीच about that minority's religion or that language. Okay, the schools, the colleges can be dealing with any educational area. For example, they could be proper schools which are affiliated to CBSE or ICSE or state boards, or they could be proper colleges affiliated with universities giving secular education. ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है तो वो सिर्फ उसी एरिया में एजुकेशन इम्पार्ट कर सकता है. ठीक है, जैसे आपका जो सेंट स्टीफेंस कॉलेज है दिल्ली का, which is one of the very good colleges under Delhi University. It is a secular college, secular in the sense it does provide secular education. It provides undergraduate courses, and even though it is a minority institution, it still prescribes a secular course. So the choice of educational institution lies with the minority.
ठीक है। डीएवी कॉलेज जालंधर के केस में कोर्ट ने अगेन यही बोला था कि 30 क्लॉज 1 में माइनॉरिटी या तो रिलीजियस हो सकती है या लिंग्विस्टिक हो सकती है। ऐसा कहीं भी रिक्वायर्ड नहीं है कि बोथ द रिक्वायरमेंट्स शुड बी देयर, ठीक है, कि रिलीजियस भी होनी चाहिए और लिंग्विस्टिक भी होनी चाहिए। मतलब द टर्म इज नॉट एंड, द टर्म इज और, ओके। सो इट कुड आइदर बी लिंग्विस्टिक और बी रिलीजियस, और इट कुड बी बोथ। Okay, now this is the part which we also talked about कि 30 clause 1 ऐसा कोई special protection generally नहीं देता है minorities को. The only reason why this has been stated specifically is so as to ensure equality with the majority institutions. ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि minority institutions are outside regulatory control. ठीक है, हम जब TMA पाई का केस देखेंगे तो हम देखेंगे कि इवन दो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के पास थोड़ा ज्यादा फ्रीडम होता है ऑफ डिसाइडिंग हाउ टू रन देयर इंस्टीट्यूट, बट नेवरदलेस इट डज नॉट मीन दैट दे विल बी आउटसाइड रेगुलेटरी कंट्रोल एंटायरली। ठीक है, जो रेगुलेटरी कंट्रोल इंपॉर्टेंट है टू प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, टू प्रिजर्व द मेरिट ऑफ द स्टूडेंट्स, द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, वो सारे लॉज और रेगुलेशंस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पे भी एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस आर एंटायरली आउटसाइड रेगुलेटरी कंट्रोल। ओके ओके, अब ऑल ऑफ दिस इज फाइन, सेम चीज है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, विच इज हु इज अ माइनॉरिटी। ठीक है, आई थिंक अभी रिसेंटली भी सुप्रीम कोर्ट मेड सम ऑब्जर्वेशन अबाउट यू नो कि हाउ माइनॉरिटीज कैन नॉट बी डिसाइडेड ऑन अ डिस्ट्रिक्ट वाइज लेवल। माइनॉरिटीज आर डिसाइडेड एज पर द स्टेट लेवल, कि स्टेट लेवल पे कोई रिलीजियस ग्रुप या कोई लिंग्विस्टिक ग्रुप माइनॉरिटी कहलाएगा कि नहीं, इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट ऑफ अ स्टेट। ठीक है, तो स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन मेजॉरिटी होगा और कौन माइनॉरिटी होगा। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं है द टर्म माइनॉरिटी और हु इज अ माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो माइनॉरिटी का लिटरल मीनिंग जो होता है यानी कि नॉन डोमिनेंट ग्रुप, that is what is meant by minority. ठीक है, so it is a relative term which is referred to represent the smaller of two numbers. ठीक है, एक majority हो सकती है, एक minority हो सकती है, that will be decided relatively on the strength of both the parties. अब 1958 के reference case में, in the case of Kerala Education Bill, Supreme Court held that minority would be determined with respect to the population of दैट स्टेट। ठीक है, तो उन्होंने आपको पैरामीटर बता दिया कि अगर आपको डिसाइड करना है या अगर आपको पता करना है कि किसी स्टेट में कौन माइनॉरिटी है, तो दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट अलोन। ठीक है, तो ऐसे कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज माइनॉरिटीज नहीं हो सकती है, मोहल्ले वाइज माइनॉरिटीज ऑफ कोर्स नहीं हो सकती है, माइनॉरिटीज किसी एक स्टेट में हो सकती है। ठीक है, तो स्टेट इज द क्राइटेरिया और स्टेट इज द यूनिट ऑन विच the minority is decided. ठीक है, ओके ठीक है, और भी कई सारे केसेस में फिर अगेन कोर्ट ने सेम बात बोली। डीएवी कॉलेज जालंधर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, आल्सो रीइटरेटेड इन टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, कि विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेट लॉ the unit to determine a religious or linguistic minority can only be the state. ठीक है, so this is what the court has said कि minority can be only decided on the basis of the strength or the population of that particular state. Okay, okay, ठीक है, अब आते हैं हम एक छोटे से केस पे, which is the case of Bishop Patro versus State of Bihar. ठीक है, अब अगर आप आर्टिकल 30 क्लॉज 1 देखो और इवन आर्टिकल 29 भी देखो, बिकॉज दीज आर्टिकल्स आर स्टडीड टुगेदर, सो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि who can claim the status of a minority. ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि इवन दो 30 क्लॉज 1 स्पेशली कहीं नहीं बोलता कि इट ओनली अप्लाइज टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, लेकिन इट हैज बीन हेल्ड दैट द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी स्टेटस अंडर 30 क्लॉज 1 कैन ओनली बी गिवन टू पर्सन्स who are minority residing in the territory of India. ठीक है, इसीलिए foreigners who are not residing in the territory of India, they cannot come to India and claim to set up an education institution of their choice. ठीक है, so this is how the courts have interpreted it कि even though citizens term कहीं पे नहीं लिखा हुआ है 30 clause 1 में,
that does not mean that foreigners can come and claim this as a fundamental right under 30 clause 1. Okay, because residence in the territory of India is imperative for 30 clause 1 to be activated. ठीक है, तो ऐसे स्पेशली सिटीजन्स नहीं लिखा है, बट इट कैन नॉट अप्लाई टू अ पर्सन हु इज नॉट एन इंडियन रेसिडेंट. ठीक है, सिटीजन भले ही ना हो, लेकिन एटलीस्ट इंडिया में रेसिडेंस जरूरी है टू क्लेम 30 clause 1. Now we come to right to claim minority status. ठीक है, अब सी बहुत मतलब आपको थोड़ा ज्यादा लग सकता है, but actually there is a law also, National Commission for Minority Educational Institution Act 2005. ठीक है, अब ये लॉ है, दिस इज अ स्टैट्यूट मेड बाय द पार्लियामेंट. ठीक है, इस लॉ के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है वो कम्युनिटीज जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज होंगी फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस लॉ. ठीक है, तो इस एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जिन माइनॉरिटीज को माइनॉरिटी डिक्लेयर करती है, दे आर नॉट द सेम एज अंडर आर्टिकल 30. ठीक है, आर्टिकल 30 इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, और यहाँ पे माइनॉरिटी का क्या मतलब है, रिलीजियस या लिंग्विस्टिक. ठीक है, कैसे डिटरमाइन होगी, जो भी नॉन डोमिनेंट ग्रुप होगा. ओके, सो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो माइनॉरिटीज डिटरमाइन करती है स्टेट वाइज, दैट does not apply to Article 30 of the Constitution. ठीक है, so the minorities under this 2005 Act and the ones who will be considered under Article 30 may very well be different. Okay. Now we come to the rights which are conferred by Article 30 Clause 1. हम देख चुके हैं कि 30 Clause 1 के अंदर दो rights दिए गए हैं, टू एस्टैब्लिश एंड टू एडमिनिस्टर. ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स हैं. आपके पास राइट है कि आप कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हो और आप उसे एडमिनिस्टर कर सकते हो. एडमिनिस्टर का मतलब है कि आप उसके डे टू डे रेगुलेशंस डिसाइड कर सकते हो कि आप हाउ विल यू सिलेक्ट स्टूडेंट्स, हाउ हु विल बी द टीचर्स, व्हाट विल बी द क्वालिफिकेशंस ऑफ द टीचर्स, व्हाट काइंड ऑफ करिकुलम वुड यू बी रनिंग. ठीक है, all of those things. So any administrative rights you can enjoy for the educational institutions that you have established. ठीक है, minority institutions को educational institutions खोलने के पहले किसी की permission लेने की जरूरत नहीं है for the institution to be considered a minority institution. ठीक है, I'm not talking about the affiliations and all. I'm not saying that if a minority institution wants to open a school affiliated to the CBSE board, then they will not have to seek their affiliation. Okay, that's not what we are saying. We are saying that for an institution to be considered as a minority institution under 30 clause 1, you don't need a prior permission from anyone. Okay, if you are a religious or a linguistic minority, you automatically have that right. Okay, it does not have to be approved by any body either under the constitution or otherwise. Okay, ऐसा नहीं है कि अगर आपने कहीं से परमिशन नहीं ली तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन. ओके, एंड ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन विल नॉट सीज टू बी अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन simply because they impart general education or receive aid from the state. ठीक है, स्टेट से एड मिलना, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना, या फिर सेक्युलर एजुकेशन प्रोवाइड करना, जनरल एजुकेशन प्रोवाइड करना, इन सारी चीजों से आपका माइनॉरिटी स्टेटस अफेक्ट नहीं होता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि इट इज देयर चॉइस व्हाट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस दे वांट टू एस्टैब्लिश. ओके, सो जुगल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ असम के केस में कोर्ट मेड दिस ऑब्जर्वेशंस. ओके, है ना, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किसी भी टाइप का हो सकता है. इट कुड बी फ्रॉम ऑल लेवल्स, फ्रॉम प्राइमरी टू पोस्ट ग्रेजुएट. Even professional educational institutions can also be established under 30 clause 1. ठीक है, तो TMA PI में भी, which was an 11 judge bench, they have also approved this particular finding. Okay, ठीक है. अब कई सारे केसेस हैं, है ना, बहुत सारे केसेस हैं, उनके बहुत सारे डिफरेंट फैक्ट्स हैं. I don't advise you to go through all of them unless there is, you know, like a recent case on it. ठीक है, तो सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में कोर्ट ने कहा था कि राइट टू एडमिनिस्टर का मतलब होता है राइट टू इफेक्टिवली मैनेज एंड कंडक्ट द अफेयर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन. ठीक है, अभी हम आगे वाले केसेस में और इलस्ट्रेशन देखेंगे कि इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है. ठीक है, मतलब आप क्या क्या चीजें डिसाइड कर सकते हो फॉर योर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन. ठीक है, बट एज आई सेड
कि ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस विल बी आउटसाइड रेगुलेटरी कंट्रोल, क्योंकि इट इज ऑल्सो नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। ठीक है, तो टीएमए पाई के केस में कोर्ट ने वापस रीट्रेट किया था कि रेगुलेशंस फ्रेम्ड इन द नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, और फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट एंड द टीचर्स विल अप्लाई टू ऑल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो अगर कोई लॉ बना है या कोई रेगुलेशन बना है नेशनल इंटरेस्ट में या फिर स्टूडेंट्स और टीचर्स के वेलफेयर के लिए, तो दे विल अप्लाई टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस एज वेल। Okay, minority institutions cannot claim immunity from them, citing that they have a right to administer their institution as they wish. ठीक है, तो इस टाइप के national interest legislations and welfare laws will still apply to minority institutions. ठीक है, so article 30 का जो right है, it is not an absolute right, even though 30 clause 1 में कोई restriction नहीं दी हुई है ना। अपन ने article 30 clause 1 पढ़ा है, उसमें ना तो कोई restriction दी हुई है, ना ही any reference to any restriction has been made. Okay? लेकिन सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में कोर्ट ने कहा था कि जो भी लॉज हैं which deal with health, morality and standard of education, all of them will apply to minority institutions as well. ठीक है, तो किस किस टाइप के लॉज अप्लाई होते हैं हमने अभी देखा। नेशनल इंटरेस्ट में जो लॉज होते हैं, laws या regulations which are made for the welfare of student and the teachers, and any law which deals with health, morality and standard of education, ये सारे laws will be applicable to minority institutions as well. ठीक है, क्यों अप्लाई होंगे? क्योंकि जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो तो यू इंटेंड टू डू द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर्स हु आर एम्प्लॉयड देयर। ठीक है, आप आर्बिट्रेरली ये क्लेम नहीं कर सकते कि यू हैव द राइट टू एक्सप्लॉइट द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल और योर कॉलेज, or you have the right to exploit or not follow the labor code so far as the employment of your teachers are concerned or your administrative staff is concerned. ठीक है, तो ये सारे मैटर्स में आप कोई इम्यूनिटी क्लेम नहीं कर सकते हो, because these laws and these regulations are intended to benefit the students and the teachers and to have a certain level or standard of education. ठीक है, तो इन मैटर्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है, बट बाकी जो इश्यूज है आप उनमें यू कैन हैव द राइट टू एडमिनिस्टर। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द कोर्ट हैज लेड डाउन इन वेरियस केस लॉज। ठीक है, मोस्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट टीएमए पाए, सेंट स्टीफेंस, डीएवी कॉलेज, ये सारे। ठीक है, ठीक है, अब हम आते हैं अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे। अनएडेड मतलब उनको स्टेट की तरफ से कोई एड नहीं मिल रहा है, they are basically either self-funded or they basically don't receive any funds or financial assistance from the state. ठीक है, तो अब अगर आपको ये बात पता हो तो टीएमए पाई फाउंडेशन के केस में द कोर्ट हैज लेड डाउन अ ह्यूज ज्यूरिस्प्रूडेंस विद रिस्पेक्ट टू अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, कोर्ट का मानना था कि एक तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ऊपर से अनएडेड, अनएडेड मतलब प्राइवेट, ठीक है, यानी कि स्टेट उसको कोई एड नहीं दे रही है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में स्टेट का ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में एडमिनिस्टर कर सकती है। इट कैन आल्सो एडमिनिस्टर प्रोबेबली मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हु आर रिसीविंग फंड्स फ्रॉम द स्टेट, बट it cannot interfere in the management of an unaided minority institution. ठीक है, तो जो भी इंटरफेरेंस होगा गवर्नमेंट का, that has to be kept to a minimum so far as unaided minority institutions are covered. ठीक है, तो टीएमए पाई के केस में कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि minority institutions not receiving funds or aid from the state cannot be regulated extensively. किस किस चीज के लिए आप रेगुलेशंस लगा सकते हो? फॉर मेंटेनिंग मेरिट, है ना, मतलब आप स्टूडेंट्स का एडमिशन कैसे कर रहे हो, भले ही वो प्रोसेस प्रिस्क्राइब ना करें, लेकिन दे कैन इंश्योर दैट इट इज ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ओके, एंड ट्रांसपेरेंसी कैन बी इम्पोज्ड, मेंटेनिंग ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, प्रिस्क्राइबिंग क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स कैन बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा मानो कि आप लोग अभी एलएलएम करोगे, राइट, लाइक सम ऑफ यू मे आल्सो गो फॉर यूजीसी एंड अल्टीमेटली बिकम अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर सो टू स्पीक। ओके, सो आप क्यों करोगे ये सारा? क्योंकि ये यूजीसी की रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास यूजीसी का क्लियर करने का आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए, राइट, तभी आप एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, फ्यूचर में हो सकता है वो पीएचडी भी मैंडेटरी करते हैं फॉर एनीबडी हु वांट्स टू परस्यू प्रोफेसरशिप। ओके, तो
if we go by this logic, then can we argue कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो है दिल्ली का, विच इज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, विच इज अ कॉलेज, तो क्या वहां पे ऐसा वो लोग बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव यूजीसी स्कोर? ओके, दे कांट डू दैट, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर टीचर्स एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स, दैट कैन बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर एन अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एज वेल, ठीक है। तो ये सारी जो जनरल चीजें हैं जो या तो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को रेगुलेट करती हैं, या मेरिट को रेगुलेट करती हैं, या वेलफेयर ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट्स को रेगुलेट करती हैं, ये सारे लॉज हर इंस्टीट्यूशन पे अप्लाई होंगे, इंक्लूडिंग अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। ओके, another important point is just because a minority institution receives any kind of state aid does not mean that it ceases to be a minority institution, ठीक है। 30 clause 2 में clearly लिखा हुआ है ना कि 30 clause 2 दूसरी चीज की बात करता है, वो बोलता है कि आप एड देने में you will not discriminate between minority and majority institutions, ठीक है। तो it flows from there only, कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन को स्टेट एड देने लगी तो वो माइनॉरिटी नहीं रहेगा, ठीक है। So TMA Pike Foundation के केस में कोर्ट ने कहा था that a minority institution does not cease to be a minority on receiving state funds. However, it may be required to admit a reasonable extent of non-minority institutions students. ठीक है, तो ऐसा जरूर हो सकता है कि अगर उन्हें एड मिल रहा है then they will be bound by the fact that they will have to reserve some seats for non-minority students as well. Okay. अब हम देखते हैं डिफरेंट फसेट्स ऑफ राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर, ठीक है। मतलब जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज के पास अपने इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर करने का राइट है, तो व्हाट डू वी मीन बाय दैट, ठीक है। क्या क्या चीजें आ सकती हैं इन द राइट टू एडमिनिस्टर, ठीक है। तो हम कुछ केसेस के एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कि कौन कौन से राइट्स कोर्ट ने बोला है कि ये माइनॉरिटीज के राइट्स हैं सो फार एज एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न। ओके, सो टीएमए बाय ब्रह्मो समाज एजुकेशन सोसाइटी एटसेट्रा के केस में कोर्ट ने बोला था राइट टू चूज प्रिंसिपल और हेडमास्टर इज द राइट कवर्ड अंडर राइट टू एडमिनिस्टर, एंड ये माइनॉरिटी डिसाइड कर सकती है कि हु विल बी द प्रिंसिपल और हु विल बी द हेडमास्टर ऑफ देयर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। राइट टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट देयर टीचर्स एंड अगेंस्ट देयर एम्प्लॉइज इज ऑल्सो द राइट कवर्ड अंडर 30 clause 1। ओके, और भी कई सारे हैं, राइट टू सिलेक्ट स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन, ठीक है, ये भी माइनॉरिटी का इंपॉर्टेंट राइट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरिट को डाइल्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सिद्धराज भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में कोर्ट ने कहा था कि रेगुलेशंस प्रोवाइडिंग फॉर रिजर्वेशन इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस शुड बी रीजनेबल, ठीक है। सेंट स्टीफेंस के केस में ऑल्दो कोर्ट ने कहा कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जिनको स्टेट से एड मिलता है, उन्हें एटलीस्ट 50% सीट्स आउटसाइड कम्युनिटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि 50-50 का डिवीजन हो सकता है, 50% सीट्स फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स इन माइनॉरिटी एडेड इंस्टीट्यूशंस एंड 50% सीट्स फॉर आउटसाइड स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन टीएमए पाई के केस में लेटर ऑन कोर्ट ने कहा कि ठीक है, रिजर्व हो सकती हैं सीट्स, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सॉरी पीए नामदार के केस में कोर्ट ने कहा था लेकिन ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है दैट 50% जैसा कोई रिजिड परसेंटेज हैज टू बी सेट, ठीक है। तो पीए नामदार के केस में कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि सेंट स्टीफेंस में जो उन्होंने 50% रूल दिया था कि 50% एटलीस्ट माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होनी चाहिए, दैट इज नॉट अ रिजिड परसेंटेज, ठीक है। इट मे वेरी इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन। ओके, फिर टीएमए पाई के केस में कोर्ट ने अगेन बोला कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस डिसाइड कर सकते हैं, they can reserve seats for community students also, but selection has to be done on inter se merit, ठीक है, determined either on the basis of a joint entrance test as is adopted for students belonging to general categories, ठीक है। तो वो उसने essentially यही बोला कि जो भी आप जिस भी तरीके से स्टूडेंट्स का इनटेक कर रहे हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो या आपकी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, उन सब में द टेस्ट विल बी मेरिट ओनली, ठीक है। या तो आप जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट कराओ या वट एवर यू डू, बट द टेस्ट इज मेरिट। ओके, सो एडमिशंस कैन ओनली बी डन ऑन मेरिट वेदर इट इज ऑफ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स और कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ओके, टीएमए पाई का केस, फिर उसके बाद हमने देखा पीए नामदार का केस।
TMA पाई के बाद PA नामदार आया था, supposedly to explain some aspects of TMA पाई, because TMA पाई was a huge judgment. Okay, it was a 11 judge bench decision, and there were a lot of observations which were made in TMA पाई. तो PA नामदार के केस में थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशंस को क्लैरिफाई करने के लिए they did take up the matter. Okay, तो इस केस में कोर्ट ने कहा that aided minority institutions would be required to admit a reasonable extent of non-minority students as well. ठीक है, हम ये पहले भी देख चुके हैं, right? टेस्ट क्या है? Selection of students, sorry, have to be done on the basis of this triple test. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं. पीए इनामदार के केस में उन्होंने टेस्ट ले डाउन किया था कि आप जब स्टूडेंट सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको कौन से 3 पैरामीटर्स यू हैव टू मीट. ओके, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड नॉन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, so it was the PA Nandar case which actually has laid down this triple test of selection of students in minority institutions. ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट स्टीफेंस की फाइंडिंग को वैलिड नहीं माना. उन्होंने कहा कि there is no need for a rigid percentage like 50% reservation for minority students in minority institutions. ठीक है, percentage may differ in different cases. It could be less than 50% or it could even be more than 50%. Okay, ठीक है. अब और क्या क्या राइट्स हैं? राइट टू इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, मतलब रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो हमने देखा था आर्टिकल 28 के अंदर कि आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकते एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए, लेकिन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कैन आल्सो बी इम्पार्टेड. ठीक है, राइट टू हैव अ चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, दैट इज आल्सो अवेलेबल. इन रेफरेंस केरला एजुकेशन बिल के केस में कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग दी थी कि राइट टू एडमिनिस्टर का मतलब राइट टू मैल एडमिनिस्टर नहीं होता है. ठीक है, मतलब आप एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे ऐसा नहीं कि आप करप्शन कर रहे हो, यू आर चार्जिंग अननेसेसरी एक्सॉर्बिटेंट फी. ओके, एंड यू आर मैल एडमिनिस्ट्रिंग द इंस्टीट्यूशंस, यू आर नॉट टेकिंग केयर द नीड अबाउट द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स और मेंटेनिंग अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स में नहीं आएंगी, बिकॉज राइट टू एडमिनिस्टर का मतलब राइट टू मैल एडमिनिस्टर नहीं होता है. ठीक है, फिर कोर्ट ने ये भी कहा सेंट जेवियर्स कॉलेज के केस में कि अगर आप जस्ट बिकॉज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो, इसका मतलब ये नहीं है दैट यू हैव अ राइट टू रिकॉग्निशन और अफिलिएशन. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई स्कूल खोला है और आपको सीबीएसई से अफिलिएशन चाहिए, यू वांट योर स्कूल टू बी अफिलिएटेड टू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. ठीक है, तो आपके पास कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि आपके इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्निशन मिलेगा ही. ओके, इफ यू सैटिस्फाई द कंडीशंस are required to get the affiliation, then you will get it. But just because you are a minority institution does not mean that you have the right to recognition or affiliation. ठीक है, आपके पास सिर्फ 2 राइट्स हैं, एस्टैब्लिश करने के और एडमिनिस्टर करने के. बाकी अगर आपको रिकॉग्निशन चाहिए या अफिलिएशन चाहिए तो यू विल हैव टू मीट देयर स्टैंडर्ड्स सेपरेटली व्हिच आर रिक्वायर्ड. ओके, अब हम आते हैं एक लास्ट छोटे से पॉइंट पे जो आपको जनरली भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बेयर एक्ट अच्छे से पढ़ा है सो यू विल अंडरस्टैंड difference between article 26 clause A and 30 clause 1. ठीक है, अगर आपको याद हो आर्टिकल 26 बात करता था रिलीजियस डिनोमिनेशंस के राइट्स की, है ना. 26 ABCD राइट्स थे जो बात करते हैं कि रिलीजियस डिनोमिनेशंस कैन एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन फॉर religious or charitable purposes. ठीक है, they can hold property, they can administer property, etc etc. ठीक है, तो 26 ये बात करता है कि religious denominations can establish institutions, ठीक है, for religious and charitable purposes. तो 30 clause 1 और 26A में ये difference है कि 26A is available to everybody, to majority also, to minority also. अगर आप religious denomination हो तो आप 26A का right use कर सकते हो, लेकिन 30 clause 1 only applies to minority institutions and that too only religious and linguistic minority. ठीक है, 26 clause A का जो right है, it is subject to 3 explicit restrictions, that is public order, health and morality. लेकिन 30 clause 1 में ऐसे कोई inbuilt restrictions नहीं है, although courts ने काफी सारे cases में they have also established that the right under 30 clause 1 is not absolute and it indeed can be regulated on certain grounds such as national interest or welfare of students or teachers, etc. Okay, so that is essentially your fundamental right of articles 29
and 30 of the Constitution. Okay. Now, if you have any doubts, you can let me know. Otherwise, we are done with this part. ठीक है, ऐसा कुछ ज़्यादा खास अलग से important नहीं होता है, unless कोई recent case आ जाए तो still this much information should suffice. बाकी तो आप case law पढ़ोगे तो you will get to know more on that. Let me know if you have any doubts. Otherwise, I'll just give you a brief of what we are going to cover next. ठीक है, क्योंकि अब ज्यादा नहीं बचा है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो now we will speed it up because you have already had like one set of basic classes for constitutional law. Alright, ठीक है, तो अब ये हो गया. अब हमें बात करनी है बिफोर सी, अब हम थोड़ा रैंडम जाएंगे. रैंडम मतलब अब हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं जाएंगे, अब हम जाएंगे इंपॉर्टेंस के हिसाब से. ठीक है, कि अब क्या इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट, दैट इज हाउ वी विल डील विद द रिमेनिंग पोर्शन. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डील विद इज अमेंडमेंट प्रोसीजर. एंड ऑफ कोर्स जब हम अमेंडमेंट्स की बात करेंगे अंडर आर्टिकल 368, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट 31A, 31B, 31C ऑल्सो. ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी दैट विल बी ऑन द इशू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी क्योंकि इट इज इम्पेरेटिव दैट यू नो हाउ कैन द कॉन्स्टिट्यूशन बी अमेंडेड. ठीक है, तो नॉट ओनली नोइंग अबाउट आर्टिकल 368 इज इम्पॉर्टेंट, ये तो है ही एक आर्टिकल जो आपको इनसाइड आउट पता होना चाहिए, बट मोर देन दैट you have to know all those landmark cases that have led to the doctrine of basic structure. ठीक है, तो हम आर्टिकल 368 के बेयर एक्ट से स्टार्ट करेंगे. We will talk about the 24th constitutional amendment जिसने आर्टिकल 368 में कुछ चीजों को अमेंड किया, and then we will see how the development has happened through case laws. ठीक है, उसमें बीच में 31A इंसर्ट हुआ, 31B इंसर्ट हुआ, 31C इंसर्ट हुआ, तो कोर्ट ने इन सबकी वैलिडिटी कैसे डिसाइड की, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, तो इसमें यू विल गेट टू लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल द केसेस बिफोर केशवनंद भारती, कि आपके सज्जन सिंह एंड ऑल ऑफ दोस केसेस, आईसी गोलकनाथ. देन हाउ डिड इट कम टू केशवनंद भारती, केशवनंद भारती के बाद क्या हुआ, आईआर कोएलो केस, मिनर्वा मिल्स केस. ठीक है, इन सारे केसेस में कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या बोला कि क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो. यस, अगर कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो और कौन कर सकता है. अगर पार्लियामेंट कर सकती है तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड कर सकती है, और क्या वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है. ठीक है, या फिर कोई ऐसा पार्ट है जिसको वो अमेंड नहीं कर सकती है. ठीक है, तो ये समझने के लिए आपको सारे केस लॉ समझ आने चाहिए, उनकी क्रोनोलॉजी समझ आनी चाहिए, और साथ में 31A, 31B एंड 31C समझ आने चाहिए. ठीक है, क्योंकि दे आर रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ओनली, बिकॉज इन्हीं की वैलिडिटी चैलेंज हुई थी इन सारे केसेस में. ठीक है, सज्जन सिंह एंड आईसी गोलकनाथ एंड केशवनंद भारती, हम जो भी देखेंगे, these were the provisions which were actually being challenged and these amendments were being challenged in the court of law. ठीक है, बीच में हम थोड़ी और चीजें देखेंगे, जैसे when we talk about आईसी गोलकनाथ केस, तो हम देखेंगे कि आईसी गोलकनाथ के केस में कोर्ट ने प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग की डॉक्ट्रिन निकाली. उन्होंने कहा कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम पुरानी चीजों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बिकॉज अदरवाइज बहुत लिटिगेशन ओपन हो जाएगी. सो दिस केस लॉ, द फाइंडिंग ऑफ दिस केस विल ओनली अप्लाई प्रोस्पेक्टिवली. ठीक है, तो दैट डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग was applied in the Indian context, which is generally considered to be a doctrine of American law. ठीक है, so we'll try to understand all that and hopefully it will be done in one class, क्योंकि इतना ज्यादा कुछ मतलब है, काफी कुछ है, बट हम कंसाइसली क्रोनोलॉजिकली उसको पढ़ेंगे. ठीक है, रिसेंटली ये इंपॉर्टेंट है एंड पर्टिकुलरली सो क्योंकि अभी वाले पेपर में उन्होंने नहीं पूछा इसके बारे में, बट द केस ऑफ राजेंद्र एन शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ओके, आई होप यू हैव गॉट द नेम ऑफ दिस. ये 2021 का जजमेंट है, पिछले साल आया था इन आई थिंक द मंथ ऑफ जुलाई और समथिंग, जहां पे कोर्ट वाज टॉकिंग अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ठीक है, तो जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला जो अमेंडमेंट था, उसकी वैलिडिटी कोर्ट वाज हियरिंग कि ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं. ठीक है, कोर्ट ने उस अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन कर दिया, नॉट एंटायरली बट पार्शियली. कोर्ट ने कहा कि ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है. ठीक है, तो हम वो भी समझेंगे कि कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन को ऑफेंड कर रहा था या कोई और रीजन था. ठीक है, सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट.
Okay, so that one class, the next class will be very important. So if you don't know about all these areas, then do attend so that you will get to know a clearer idea of how can you amend the constitution. ठीक है, क्या procedure है और क्या power है, ठीक है, कितने extent तक आप constitution को amend कर सकते हो.